डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से Raj, I got your doubt. This is your answer. समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर गोइंग टू द MCQs, एज ऑलवेज वी डू, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी, राइट? स्लाइड थ्योरी एंड स्लाइड फॉर्मूला रिविजन्स, दैट विल डू एंड देन विल जंप ऑन टू द MCQs. चलो, फर्स्ट थिंग, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी हैव सीन yesterday, so I'm not doing that. Let's start from the angular momentum. Okay, so angular momentum, what is angular momentum? This is moment of momentum, है ना? Moment of momentum, the formula is R cross P. जैसे हमने टॉर्क पढ़ा है, we have studied torque also, right? टॉर्क में क्या होता है? Torque is given by this formula R cross F, where R is the position vector of the point where force is applied, cross F, cross product of between R cross F. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या होता है? Here this is, let's say, momentum of a particle, P vector. P vector कैसे लिखते थे हम? In center of mass we have seen P vector is nothing but mass into velocity, right? Mass into velocity vector. So let's say there is a particle somewhere here. It is having some momentum in this direction, P vector. Okay? I want to know how much is the angular momentum of this particle with respect to this origin. अब आप ये P sin theta, P cos theta उसमें मत जाओ. I'll be telling you the simple way of doing this, right? Don't see these things. ये सिर्फ complicate करेंगे. The simplest way of doing this is, let's say this is my momentum vector. This will be known as the line of action, right? In this line of action, this is acting. This momentum is acting. What I have to do is, if I want angular momentum about this point, I just want perpendicular distance between line of action of momentum and this origin. For example, here this is the line of action, right? So perpendicular distance with respect to origin or the point about which you are calculating angular momentum is this much here. देखो कौन सा distance है ये? R perpendicular. If this is my R, right, and if this is theta, तो ये भी theta है, तो this is actually R sin theta. R का sin component. देखो ये theta है ना, तो R cos theta and this is R sin theta. तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया एंगुलर मोमेंटम का अबाउट दिस पॉइंट? आर पी साइन थीटा. ये आप याद रखो. एंड इवन डोंट वरी अबाउट थीटा एंड ऑल, जस्ट ये याद रखना है कि इफ दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, देन वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड द पॉइंट अबाउट विच यू वांट टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम. क्लियर है एकदम? ग्रेट. चलो आगे बढ़ जाते हैं. दिस वाज एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पॉइंट, है ना? कोई एक पॉइंट है, पार्टिकल है छोटा सा, उसके लिए. इफ यू हैव a rigid body, पूरा body है, डिस्क हो सकता है, ring can be there, sphere, hollow sphere, anything, then in that case the angular momentum about any axis h is given by I into omega. I h क्या है? moment of inertia about that axis h, जिसके about आप angular momentum लिखना चाहते हो, right? Same axis. So angular momentum about any axis is given by moment of inertia about that axis into omega, which is the angular velocity. Simple formula, ठीक है? I into omega. ये हो गया, ठीक है. What about conservation of angular momentum? So in last to last class, center of mass, I have taught you how do we conserve the momentum, right? When do we conserve the momentum? कब कंजर्व करते हैं मोमेंटम? When net force on a system is zero. जब net force क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वैनिश हो जाए. यहां पे you can conserve this angular momentum when the net torque is zero. जब आप ये कह लो कि torque जीरो हो जाए, then angular momentum will be conserved because this relation is there. Torque is equal to dl by dt, very similar to our that relation. Force is equal to dp by dt. याद है क्या सभी को? Second law, right? Force is equal to dp by dt, rate of change of linear momentum. But अगर rate of change of angular momentum ले लें तो क्या आ जाएगा? Torque. Now just imagine if torque is zero, that means change in angular momentum is zero ना? Torque zero, तो dl zero. dl zero मतलब angular momentum is conserved. सिंपल है, समझ में आ गया? ग्रेट. चलो, सो दिस वाज द रिवीजन फॉर दिस लेक्चर, और उसके बाद जो भी जरूरत होगा आई विल बी टेलिंग यू बिटवीन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. ठीक है? शैल वी स्टार्ट गाइस? यस, ग्रेट. चलो बढ़िया, शुरू करते हैं.
सो फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे बेस्ड ऑन टॉर्क. आपको ये इक्वेशन सभी को पता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. एवरी वन ऑफ अस नो दिस फॉर्मूला, राइट? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. अब देखो ध्यान से, अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड मास m is free to rotate about point A. तो ठीक है, ये एक रॉड है ऐसा and it is free to rotate. जैसे ये रॉड है ऐसे, it is free to rotate about A, है ना? ऐसे रोटेट हो सकता है वो. He is asking the rod is released from rest in horizontal position. तो पहले ऐसे रॉड रेस्ट पे था and then it is released, और क्या कह रहा है वो? A के अबाउट रोटेट होना है उसको, राइट? इट इज नॉट जस्ट स्लाइडिंग डाउन, ऐसे नीचे नहीं आ रहा वो, A के अबाउट इट इज फ्री टू रोटेट. ठीक है, तो A के अबाउट रोटेट होगा. Now he is saying given that moment of inertia of the rod about A is ml square by 3. अच्छा, ये तो हमें पता था पहले भी. This formula we have seen yesterday, right? If there is a rod mass m length L about this axis it is ml square by 3, about center of mass ml square by 12. पता था, but it is given in the question. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. The initial angular acceleration of the rod will be. Initial क्या पूछ रहा है वो? Angular acceleration. अब देखो, in this rotation this is combination of न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, एनएलएम में जो पढ़ा है थोड़ा बहुत, एंड द सर्कुलर मोशन, है ना? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में यू मस्ट हैव स्टडीड व्हेन अ पार्टिकल इज डूइंग सम सर्कुलर मोशन इट कैन हैव टू काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन, टू लीनियर एक्सेलरेशन बेसिकली. तो एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर नोन एज ए आर. सबको पता है ना ए आर, रेडियल कंपोनेंट और सेंट्रिपिटल कंपोनेंट. और उसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस बताओ? ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना? यही फॉर्मूला होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ए आर, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है गाइस? ए टी. ए टी. सो लेट्स से दिस इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन विद सम ओमेगा. इसका वेलोसिटी होगा यहां पे, एंड लेट्स से इट इज हैविंग सम एंगुलर एक्सेलरेशन समथिंग लाइक दिस अल्फा, है ना? अल्फा ओमेगा ऐसे रोटेट हो रहा है. तो इन दिस डायरेक्शन इट विल हैव सम वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड इन द सेम डायरेक्शन टू द वेलोसिटी बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव इट विल बी ए टी, है ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? दिस थिंग वी नो, राइट? वन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड वन विल बी टेंजेंशियल, परपेंडिकुलर टू दैट, है ना? ए आर के परपेंडिकुलर ए टी. ए आर का मैग्नीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर आर, ए टी का मैग्नीट्यूड इज अल्फा इंटू आर, है ना? अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और आर, ये होता है. ठीक है, दिस पार्टिकल ऑल्सो, मतलब ये जो रॉड है, व्हेन यू रिलीज्ड इट it will rotate, right? We can assume that center of mass is doing a circle. यहां पे हम ऐसा assume कर सकते हैं कि center of mass क्या कर रहा है? एक circle कर रहा है. तो let's say this is the center of mass, ऐसे आएगा वो नीचे. ठीक है, अब देखो at this point ये जो मैंने situation draw किया है, I'll just remove this one, right? Circular motion वाला एक बार remove कर लेते हैं. So हाँ, ये clear हो गया. ठीक है, अब देखो that point is doing the circle, right? Center of mass. That means towards the center of rotation. सेंटर ऑफ रोटेशन ये है ना, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रोटेट होगा. सो टुवर्ड्स दिस देयर विल बी एन एक्सेलरेशन ए आर. याद है इसकी तरफ कौन सा हो जाएगा एक्सेलरेशन? ए आर. एंड व्हाट अबाउट टुवर्ड्स दिस? इट विल बी ए टी. हाउ मच विल बी ए आर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ए आर कितना होगा? सो ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. व्हाट इज ओमेगा? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना? हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. दैट मींस एट दिस सिचुएशन व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ओमेगा इज जीरो. ओमेगा कितना है? जस्ट जीरो. तो ए आर विल बी हाउ मच? इट विल ऑल्सो बी जीरो, बट देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ ए टी बिकॉज दिस इज नोन एज अल्फा इंटू आर, राइट? इसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू आर. रॉड विल हैव सम एंगुलर एक्सेलरेशन इनिशियली which he is asking. Okay, this question can be done in only one step, but I wanted to give you insight of this and that's why I am taking more time. Okay, देखो एक स्टेप में कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना. Okay, in these kind of problems we have two equations now. One is F net is equal to ma, जो सेकेंड लॉ से आ गया, but because of rotation टॉर्क का भी एक कंपोनेंट है, so torque is equal to I alpha. दो इक्वेशंस होते हैं हमारे पास. Just by using this equation I can solve this problem, but I wanted to tell you that how AR and AT will work because sometimes they ask hinge reactions, उसके लिए काम आता है. ठीक है, क्या AR और AT सभी को क्लियर है? AR acting towards the point of rotation, है ना, जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है. AT is perpendicular to that. AR is centripetal,
value is omega square r, at is alpha into r, this is tangential. In this particular case ar is 0 because omega initial is 0. Clear? अब देखना ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है. About this point, right, let's take the torque. Torque लिखते हैं, ठीक है. So about this point torque will come only due to mg. नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे? mg, weight of this rod, है ना, mg. What about mg का torque about this point? Torque क्या होता है? Force into perpendicular distance, है ना. Force देखो mg, perpendicular distance will be L by 2, है ना. अगर पूरा लेंथ L है तो perpendicular distance कितना हो जाएगा? L by 2. देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे mg into L by 2, है ना. I'll just change the color. I think blue is not visible to you. mg into L by 2. समझ में आ गया ये? I'll just write it again. mg L by 2. ये torque हो गया about this point. Now no other force is creating the torque because hinge reactions are acting here only. तो उसका कुछ भी torque नहीं आएगा, right? Passing through that point. Equal to I into alpha. यही होता है torque equal to I alpha. What about moment of inertia? It is already given ml square divided by 3 into alpha. Just L को cancel कर लो. M and M also will get cancelled out. You will be getting alpha is equal to 3g divided by 2l. This is the answer, which can be just you can get this answer in one step, right? But yes, whole insight of the problem is very important. They can ask hinge reactions also. Okay? समझ में आ गया क्या guys? Tangential acceleration, angular acceleration, torque equal to I alpha. ठीक है? Great. चलो, it was a great problem. आगे बढ़ जाते हैं. Next problem. Yes, this one. काफी logical है. This problem is very logical. Please answer this. So he is saying a particle of mass m moves in xy plane with velocity v along a straight line AB. तो AB के along velocity v से वो move कर रहा है. ठीक है? If angular momentum of the particle with respect to origin O is LA when it is at A, ठीक है, जब वो A पे है यहाँ पे, then angular momentum he is saying it is LA. But when it reaches B, then it is LB. And now he is asking to compare LA and LB. क्या वो equal होंगे? Relationship between these two depends on the slope of the line AB. LA is less than LB, greater than LB. Any answer for this? Correct answer should be LA equal to LB. अब याद करो, when I taught you the theory of angular momentum, right? I told you that just see the line of action of the velocity of the particle. ठीक है? Here the line of action is this only, right? This is the line of action. This line of action is same for point A and same for point B, right? It is same for point A and B, isn't it? So angular momentum also, if you want, you just have to take the perpendicular distance from origin to the line of action. याद आया? Perpendicular distance. यही होगा ना perpendicular. This is line of action. उसके perpendicular through the origin. तो perpendicular distance for A point or even for B point, it is same. So angular momentum also will be same, right? Because we have the formula m v r perpendicular. So v is same at A and B. Mass तो same है ही, same particle है, and also r perpendicular is same. तो क्या आ गया आंसर? LA is equal to LB. अलग नहीं होगा बिल्कुल भी. Okay? If scenario was something like this कि L पे it is traveling in this direction, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, और मान लो B पे it is traveling in this direction, then it will be different, right? क्योंकि इसका जो perpendicular distance होगा that will be something else, इसका जो perpendicular distance होगा that will be something else. समझ में आ रहा है क्या? But here in this scenario which is asked, दोनों का सेम एंगुलर मोमेंटम. ठीक है? सो LA इक्वल टू LB इज द करेक्ट आंसर, A. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, रोप इज वाउंड. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से. अराउंड अ हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है रिंग, राइट? सिलेंडर ले लो और बीच का पोर्शन हॉलो बना दिया. दिस इज जस्ट रिंग. यू कैन से रिंग एंड हॉलो सिलेंडर आर हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ mr स्क्वायर, है ना? पता है हमें. अब देखो मास इज 3 kg, radius is also given to me. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? Let me draw the situation first of all. He is saying there is a hollow cylinder, something like this, okay? And he is saying rope is wound around a hollow cylinder. So some rope is wound around it, ऐसे, right? This is the rope wound around it, and but one end some force of 30 Newton is applied. So here from this point he is applying a force of 30 Newton यहाँ से, right? So 30 Newton force is applied. Everything is given, mass, radius सब कुछ दिया हुआ है. बताओ आंसर क्या होगा?
एंगुलर एक्सेलरेशन. चलो लेट मी टेल यू. सो लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ मास. इफ फोर्स 30 न्यूटन इज अप्लाइड लाइक दिस, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, है ना ऐसे. तो लेट्स से दिस इज द अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर अल्फा इन दिस डायरेक्शन. रेडियस इज गिवन, मास इज गिवन. व्हाट आई कैन डू इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास I can write down this equation, torque is equal to I into alpha. About the center of mass, torque about center of mass, I also about center of mass. ठीक है. अब देखो, if you calculate torque about this point, the only torque is due to this 30 Newton, है ना. So 30 Newton into this distance which is R, है ना. यही तो होगा 30 into R. टॉर्क में क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो क्या मिल जाएगा टॉर्क, देखो ध्यान से, 30 इंटू आर इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास. क्या देखा था अभी, एम आर स्क्वायर, है ना, एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा. हो गया प्रॉब्लम. ये आर और ये आर कैंसिल, तो एल्फा ही इज आस्क्ड, इट विल बी 30 डिवाइडेड बाई एम इंटू आर. एम इज 3, आर इज 0.4. कन्वर्टेड इंटू मीटर्स, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, कन्वर्टेड इंटू मीटर्स 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.4, इट विल बी 25, है ना. 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर. So simple application of formula will be there in this chapter of rotational motion when a problem is asked from this torque वाला scene. ठीक है. You just have to apply this formula, torque about center of mass is equal to I about center of mass into alpha. ठीक है, great, हो गया. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Yes, what about this? इसमें मिस्टेक होता है. Problem in which mistake can be committed here by students. देखो, he is asking disk of mass is there, radius r, rolling बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन. द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट ओरिजिन O इज. अब देखो, वी हैव सीन दैट इफ आई हैव अ पार्टिकल रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग विथ सम वेलोसिटी v, तो अबाउट दिस पॉइंट व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? इफ आई टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, देन इट इज mvr. ये पता है मुझे, है ना, कैपिटल R लिख लो, mv into r. This is for a point mass, but for a body which is rotating, it is I into omega, है ना. Now you people generally tend to commit this mistake that you will say, okay sir, this is a body, है ना, this is a body, disk है ये, mass m है and radius r is also given. तो about this point I can write angular momentum is I into omega. हो गया. Disk का moment of inertia mr square by 2, तो mr square by 2 into omega. A wrong, not correct. ये सही नहीं है. ओके, दिस इज नॉट करेक्ट हियर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोलिंग. सो लास्ट क्लास इफ यू रिमेंबर, वन क्वेश्चन वी डिड, राइट, वन बॉल केम रोलिंग एंड कोलाइडेड विथ अ स्प्रिंग. द एनर्जी दैट वी रोट वाज नॉट ओनली हाफ mv स्क्वायर, बट इट वाज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I omega स्क्वायर, बिकॉज वी सेड रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांसलेशन, सेंटर ऑफ मास जो आगे भी जा रहा है ऐसे किसी वेलोसिटी v से, एंड ऑल्सो रोटेशन ऑफ द बॉडी, है ना, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. सो सिमिलरली फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ टू कंपोनेंट्स. यहां पे क्या होता है, देखो, द टू कंपोनेंट्स व्हेन यू आर राइटिंग एंगुलर मोमेंटम हियर, L वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू mvcom. ओके, mvcom मतलब मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू r परपेंडिकुलर. r परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? VCOM का लाइन ऑफ एक्शन एंड O के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो दैट इज R ओनली, दिख रहा है यहां पे, राइट, वो रेडियस ही है डिस्क का, है ना. देखो ये कितना है, रेडियस ही तो है डिस्क का. तो R परपेंडिकुलर प्लस I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा. ये पूरा पूरा फॉर्मूला होता है. देखो, सो बोथ द कंपोनेंट्स आर देयर, राइट. ये देखो ट्रांसलेशन का कंपोनेंट आ गया और ये रोटेशन का आ गया. सो इफ इट वाज ओनली रोटेटिंग, नॉट रोलिंग, समझ में आ रहा है, ओनली रोटेटिंग, then I would have written ICM into omega, then A would have been the answer. But यहां पे ऐसा नहीं है, रोलिंग है, दोनों लेना पड़ेगा. कर लो. अब देखो, MVCM into R perpendicular. So you know the relation between VCM and omega, right? V is equal to omega R. Omega R हो जाता है, पुट कर लो यहां पे. So M into omega R into R perpendicular क्या है, ये R ही है, so R square हो जाएगा. Plus ICM is how much? MR square by 2 into omega. तो क्या आ गया, देखो, m ओमेगा आर स्क्वायर एंड m बाई 2 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना. तो क्या मिल जाएगा आंसर, 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2. सो 3 बाई 2
mr² ओमेगा. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. चलो ग्रेट. ऑलवेज रिमेंबर राइट, व्हेनेवर यू सी रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी में भी यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर एंड इवन इन एंगुलर मोमेंटम यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर. काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, यहां पे mv cm r परपेंडिकुलर प्लस i cm इंटू ओमेगा, एक कंपोनेंट ट्रांसलेशन का और एक कंपोनेंट रोटेशन का. ऑलवेज रिमेंबर इन रोलिंग. ओके चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं. यस, दिस प्रॉब्लम अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी नाइस प्रॉब्लम. ये तो बहुत धीरे से कराऊंगा, प्यार से कराऊंगा, ध्यान से देखना. अ फोर्स F इज अप्लाइड एट द टॉप ऑफ अ रिंग ऑफ मास m. तो दिस इज अ रिंग ही इज सेइंग, मास m है, वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr². ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म. अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो. प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग. सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, स्लिपिंग को प्रिवेंट कर दिया, मतलब क्या, रोलिंग हो रही है ना. नो स्लिपिंग इज देयर. दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग में लेट्स से दिस इज वेलोसिटी v, दिस इज ओमेगा, देन फॉर प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू ओमेगा r. okay, let's say this is the acceleration of center of mass and this is alpha, angular acceleration. Then we say alpha is equal to, sorry, a is equal to alpha into r. ये सब फॉर्मूला हमें पता है ना, v is equal to omega r और a is equal to alpha into r. This is the condition of pure rolling. अब देखना ध्यान से, he is asking what is the frictional force acting on the ring. फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है रिंग पे. चलो इसको करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना. And yes guys, first I'll be telling you this with the help of basic formula, एकदम basic method से, but then I'll be telling you a trick. वो trick अगर आपको याद है, you will be able to calculate the friction force का direction, able to find out the friction force का direction very easily, बहुत कम टाइम में हो जाएगा. देखना ध्यान से, ठीक है. So first let's do conventional method, है ना, करें क्या, चलो देखो ध्यान से. So friction force let's assuming कि इट इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f. ओके, कैपिटल F इस डायरेक्शन में लग रहा है. आई हैव टोल्ड यू इन सच सिनेरियो इन रोटेशन मोशन वी हैव टू इक्वेशंस, F net इज इक्वल टू ma, है ना, जो कहां से आ गया, सेकेंड लॉ से. एंड द सेकेंड इक्वेशन इज टाउ नेट इज इक्वल टू I इंटू एल्फा. जस्ट लेट्स यूज दीज टू इक्वेशंस, एवरीथिंग विल बी डन. F net इक्वल टू ma लिख लेते हैं. लेट्स टेक द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है देन आई विल टेक दैट एज पॉजिटिव. दिस F, कैपिटल F एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, तो आई एम राइटिंग दिस, देखो F, ठीक है, प्लस F. दिस स्मॉल f फ्रिक्शन विच आई हैव अज्यूम टू बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन है ना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन. चलो हो गया, वन इक्वेशन वी गॉट, ठीक है, इजी. सेकंड, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. तो टॉर्क विल बी टेकिंग अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं. अब देखो दिस F एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन इट विल ट्राई टू रोटेट दिस डिस्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ऐसे रोटेट कर रहा है ना, देखो क्लॉकवाइज, है ना, इट इज ट्राइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज. लेट्स टेक क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, मेरी मर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी ले सकते हो. आई एम टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, ठीक है. तो व्हाट आई विल से, F का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r. रेडियस ही तो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पॉजिटिव. तो टॉर्क क्या हो जाएगा F की वजह से, F इंटू r, ठीक है. दूसरा टॉर्क किसकी वजह से आएगा, स्मॉल f. ऑब्वियसली mg इज देयर, नॉर्मल फोर्स इज देयर, बट उनका टॉर्क नहीं आएगा ना, उनका टॉर्क तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ओनली. सो नो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास फॉर mg एंड नॉर्मल. अब देखो F इन विच डायरेक्शन इट इज ट्राइंग टू रोटेट द डिस्क अबाउट दिस पॉइंट. फिर से देखो क्लॉकवाइज, ऐसे ये ऐसे रोटेट करेगा ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास यू हैव टू सी. तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है ना, ऐसे लग रहा है फोर्स. तो व्हाट अबाउट दिस क्लॉकवाइज, पॉजिटिव अगेन, तो प्लस अगेन एंड स्मॉल f इनटू r, बिकॉज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r ओनली. गेटिंग माय पॉइंट, इक्वल टू I इनटू अल्फा. अच्छा रिंग है या डिस्क है, रिंग है, तो I विल बी हाउ मच, mr² इनटू अल्फा. एंड डू वी नो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड a? यस आई नो, अल्फा विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई r. पता है ना मुझे, ये अल्फा क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई r. रख दो इसको, देखो
एफ आर, आर को कॉमन ले लेते हैं यहां से, ठीक है, आर बाहर ले लिया, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एल्फा विल बी ए डिवाइडेड बाई आर. सो 1 r कैंसल आउट and this r also getting cancelled out. तो r पूरा कैंसिल हो गया. You will be getting f plus f is equal to ma and first equation was f minus f equal to ma, है ना. two equations you have, f minus f equal to ma और f plus f equal to ma. सॉल्व करो, दिख रहा है फ्रिक्शन फोर्स शुड बी 0, तभी पॉसिबल है ना ये. f minus f equal to ma, you can just solve it, right? two equations, you know how to solve two equations, right? You will be getting small f as 0. मतलब यहां पे फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है. विदाउट फ्रिक्शन ऑल्सो दिस रोलिंग विल हैपन, राइट? नो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग. वंडरफुल प्रॉब्लम. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? एफ नेट इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. सो आई एम डूइंग ग्रेट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे ओनली, राइट? नॉट द वेरी बेसिक वंस. अच्छे प्रॉब्लम्स करो, अच्छे प्रॉब्लम्स ही आते हैं रोलिंग से, ओके? अदरवाइज दे विल जस्ट आस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो तो आपको आता है पहले से ही, राइट? बट इफ दे आर गोइंग इनटू डेप्थ, अच्छे प्रॉब्लम्स, then these are kind of problems that can be asked. okay, चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं. अच्छा, इसका मैंने बोला था शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना? देखो शॉर्ट ट्रिक, देखो फोर्स कितना है फ्रिक्शन का? 0. द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस इज समथिंग लाइक दिस. जनरलाइज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? इन अवर प्रॉब्लम ही सेड दैट फोर्स वाज एक्टिंग हियर, राइट? याद है यहां पे लग रहा था फोर्स, याद है ना, यहां पे फोर्स लग रहा था. लेट्स से दैट फोर्स इज एक्टिंग एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, सम डिस्टेंस, जनरलाइज्ड. तो इसको एक बार हटा रहा हूं मैं, ठीक है? सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फोर्स जो मैंने यहां पे ऊपर में ड्रॉ किया था. लेट्स से फोर्स इज एक्टिंग एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. कोई भी डिस्टेंस x. हमारे केस में वो डिस्टेंस x कितना था? r के बराबर, है ना? रेडियस ऑफ द रिंग के बराबर था. इसमें क्या ले लिया हमने? x. यू जस्ट हैव टू चेक फॉर दिस. देखो रेडियस r, रेडियस ऑफ जाइरेशन कल पढ़ा है ना last lecture में. those who have not seen last lecture, please watch that. I have taught how to calculate what is this radius of gyration, everything. So these two things you need to know, r and k. Then what you have to do is you have to compare these quantities. ध्यान से देखना, k square and rx, ठीक है? k square और rx को कंपेयर करना है. If k square is greater than rx, अगर इसकी वैल्यू rx से ज्यादा आ गई, then the friction force acts in the forward direction, इस तरफ, ठीक है? If k square is less than rx, then it acts in the backward direction, पीछे. But in a case if k square becomes equal to rx, friction force is 0. कोई friction force नहीं लगेगा अगर k square किसके बराबर हो गया? rx के. Our case, हमारा जो केस था उसमें we have taken a ring, right? उसमें क्या दिया था क्वेश्चन में? रिंग. रिंग का k वैल्यू, that is radius of gyration, all of us know that is r, right? Ring के लिए radius of gyration is r. Are we aware of that? If you are not aware, please watch last class lecture rigid body dynamics 1. वो वाला वीडियो देखो, हमने ही कराया है. k is equal to r होता है रिंग के लिए, है ना? Also in our problem he said that force is being applied at the top, रिम के टॉप में. तो what is the x का वैल्यू? x is also r. फोर्स जहां पे लग रहा है, समझ में आ गया? r पे लग रहा है फोर्स. Now just compare these two things, k square and rx. k square, because k is r, k square will be r square. ठीक है? What about r into x? r into x भी r ही है, तो that also r square. क्या कंडीशन आ गया? इक्वल का कंडीशन आ गया. k square is equal to rx, no friction force. ठीक है? कोई भी friction force act नहीं करेगा. Are we clear on that guys? तो if you remember this, friction force का डायरेक्शन चुटकियों में आ जाएगा तुमसे. ओके? चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं. Let's move ahead. A disc is performing pure rolling on a smooth stationary surface with constant angular velocity. Okay. At any instant of the lowermost point, for the lowermost point of the disc, you have to choose the correct option. So tell me the answer guys. I know most of you must be thinking about this option. Velocity 0 होता है और acceleration भी 0 होता है, but that is not correct. I'll be telling you how. Okay? देखो ध्यान से. Pure rolling हो रहा है ना? He is saying there is a pure rolling, smooth surface है, and then he is saying a constant angular velocity. मतलब ओमेगा is constant. ये जो ओमेगा है that is constant. For constant omega, how much is alpha? Alpha का क्या फॉर्मूला होता है? देखो d omega by dt, right? d omega by dt. तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा इज 0, यानी कि यहां पे कोई भी अल्फा है ही नहीं.
इफ अल्फा इज 0 दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो सर्कुलर मोशन करेगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे बॉटम मोस्ट पॉइंट, यहां पे कुछ भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मींस अल्फा इनटू आर, दैट इज नॉट देयर। एंड इवन दिस ए आल्सो विल बी 0, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है ना, दैट इज आल्सो 0 बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखना लेकिन ध्यान से, still there will be one acceleration of this lowermost point in this direction, centripetal acceleration, जो कितना होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, याद है क्या। सो वी आर नॉट सेइंग कि नेट कितना होगा, राइट, वी आर जस्ट सेइंग कि इफ दिस डिस्क इज रोटेटिंग और रोलिंग, अगर वो रोटेट हो रहा है इट विल हैव सम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा इज v बाई आर, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो v स्क्वायर बाई आर ऑल्सो। तो इतना एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का, दो वेलोसिटी विल बी 0, है ना। नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0, क्योंकि नेट वेलोसिटी कैसे 0 होगा, देखो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v और ये रोटेट हो रहा है ओमेगा से, तो दिस पॉइंट इट विल हैव ओमेगा इनटू आर, राइट। देखो ओमेगा ऐसे है तो दिस पॉइंट इट विल हैव ओमेगा आर एंड दिस पॉइंट इट विल हैव v, नेट वेलोसिटी इज 0। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे, वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गया क्या, सेंट्रिपिटल कंपोनेंट इज देयर, ओके ग्रेट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू डिस्क्स आर रोटेटिंग, हाँ ये देखो अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, अबाउट देयर एक्सेस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो दो डिस्क हैं ऐसा रोटेट हो रहे हैं, पासिंग थ्रू द सेंटर, ये एक्सेस है उसका, ओके। D1 का सारा वैल्यूज दिया हुआ है तुम्हें, D2 का भी सारा वैल्यूज दिया हुआ है, ओके। ही इज आस्किंग द टू डिस्क आर brought in contact face to face with their axis of rotation coincident. The final angular velocity is, इसको एक डायग्राम से समझो, what question is trying to convey, try to understand this with a diagram. ये दिखा है क्या डिवाइस, ऐसे डिस्क को रख के फिर गाने बजाते हैं इसमें, है ना, वैसा कुछ है, देखो। So let's say this is one disk at the bottom, ये वाला डिस्क, ठीक है, and let's say it is rotating with some angular velocity omega 1 और omega 2 जो भी ले लो आप, ठीक है, and this is another disk, it is also rotating with some omega जो हमें दिया हुआ है। So this is rotating with 50 initially and this is rotating with 200. These are the given data that are written here, okay. The radius of this one is 0.2, mass is 2 kg, radius of this one is 0.1 and mass is 4 kg and both are disks, है ना। डिस्क के लिए I know how much is the moment of inertia, it is just mr square by 2. तो ये वैल्यू तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ही दिया हुआ है, m and r, that I can understand, right? अब देखो ध्यान से, so they are rotating with different angular velocities initially but later on they are brought into contact. ये वाला डिस्क लाके इसके ऊपर ऐसे रख दिया and then he is saying कि now after some time they are rotating with same angular velocity, obviously because of friction that will happen, right? So friction does not like the relative motion, so friction will do some work, reduce the kinetic energy and then finally they will be rotating with same angular velocity which is given in the question itself. He only told that finally they are revolving with the same angular velocity. So when they are revolving with same angular velocity and when they are in contact, then how much is the omega final, finally कितना ओमेगा हो जाता है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। When this disk is slowly kept on this disk, right, it will be applying some friction, है ना, दोनों में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कुछ। देखो ये ऐसे रिलेटिव मोशन हो रहा है ना दोनों के बीच में, सो सम टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे फ्रिक्शन लगेगा। मान लो इस पे ऐसे लगता है, ऑन दिस डिस्क फ्रिक्शन इज दिस डायरेक्शन, तो इस डिस्क पे कैसे लगेगा, सेम इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना वो, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, सेम फोर्स दिस डिस्क विल अप्लाई ऑन दैट डिस्क, सेम फ्रिक्शन फोर्स। तो जो नेट टॉर्क आएगा ना फ्रिक्शन का अबाउट दिस एक्सिस, दैट विल बी ऑलवेज 0 एंड दैट इज ट्रू फॉर नॉर्मल फोर्सेस ऑल्सो। ये कुछ नॉर्मल फोर्स उस पे लगाएगा, ये कुछ नॉर्मल फोर्स उस पे लगाएगा ऊपर, तो नेट टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स वो 0 हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स ही 0 हो जा रहा है ना। तो आई कैन से इन दिस सिनेरियो दैट नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम will be 0 and whenever net torque is 0 we say angular momentum is conserved. तो initial angular momentum is equal to final angular momentum. क्या बात समझ में आ गई?
जब नेट फोर्स 0 होता था हम क्या करते थे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. यहां एवरीथिंग इज रोटेटिंग, वी आर गोइंग फॉर द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बिकॉज कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, टॉर्क नेट इज 0, है ना. इस एक्सिस के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 व्हेन दे आर इन कांटेक्ट. ओके, अब देखना ध्यान से, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क ना, रोलिंग तो नहीं है ना ये, दिस इज नॉट रोलिंग, जस्ट रोटेटिंग. जस्ट रोटेटिंग में क्या हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा. डू आई नो I? यस, mr² 2 फॉर बोथ, राइट. मास एंड रेडियस आर चेंज डिफरेंट बट फॉर्मूला इज सेम, राइट, I इंटू ओमेगा. तो what I can do is, first of all I can write initial angular momentum. Let's say इसका moment of inertia is I1, तो I1 ओमेगा 1 प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम इनिशियली इज I2 ओमेगा 2. ठीक है, इसको मैंने 1 लिया है, इसको मैंने 2 लिया. दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, फाइनली क्या होगा, दे आर रोटेटिंग विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम विल बी I1 इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस I2 इंटू ओमेगा फॉर दिस नीचे वाले का. ये इक्वेशन समझ में आया क्या? देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. अब ओमेगा यहां से बाहर आ जाएगा एंड देन रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन दैट आई विल बी जस्ट शोइंग यू हियर. देखो ध्यान से, सेम चीज किया, राइट. सो यही मिल जाएगा ना तुम्हें, ओमेगा फाइनल विल बी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2. ओमेगा को बाहर ले लिया ना, I1 प्लस I2, दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर. अब सब कुछ रखने के बाद एवरी वैल्यू व्हेन यू विल पुट, यू विल बी गेटिंग दिस एज द आंसर. फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज 100 रेडियन पर सेकेंड. So this is a great example to understand angular momentum conservation and I hope we are clear on that, right? चलो great, बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं. Next problem, yes, again an important one. This is from rolling on an inclined plane. Many times they have asked this. Many times they have asked to compare accelerations of two different objects when they are rolling over an inclined plane. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे. He is saying thin uniform circular ring है, ठीक है, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. तो कोई इंक्लिनेशन है ऐसा एंड देन देयर इज अ रिंग, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है दिस वन, इट इज रोलिंग, राइट, रोल हो रहा है, वो स्लाइड नहीं हो रहा. अच्छा, व्हेन इट इज स्लाइडिंग तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था गाइस, स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, लॉस ऑफ मोशन याद है कुछ, G sin थीटा, आई हैव टोल्ड यू, राइट. विथ फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, बोथ आई हैव टोल्ड यू. विदाउट फ्रिक्शन इट इज G sin थीटा. फ्रिक्शन का लेक्चर देखो अगर नहीं देखा है तो, राइट, यू विल अंडरस्टैंड दिस. विदाउट फ्रिक्शन G sin थीटा, और विद फ्रिक्शन क्या हो जाता था, G sin थीटा माइनस म्यू G cos थीटा. वो भी कराया मैंने. अगर म्यू यहां पे फ्रिक्शन है तो अगर वो स्लाइड हो रहा है, इट विल बी G sin थीटा माइनस म्यू G cos थीटा. एंड वी हैव डन वंडरफुल प्रॉब्लम्स ऑन दैट आल्सो, है ना. यहां पे इट इज नॉट G sin थीटा, यहां पे कुछ और आता है आंसर. ठीक है, चलो वो पहले डेराइव कर लेते हैं. ओके, एंड व्हेन वी आर डेराइविंग दिस, why only doing for ring? Let's do it for a general case. It can be a ring, it can be a disc, है ना, डिस्क भी हो सकता है, it can be a solid sphere and it can be a hollow sphere. समझ में आ रहा है? Let's just generalize the case, no? Why only doing for ring? Because it will be useful for us in examination. सबका याद होगा मुझे, है ना. Now the best thing is we can just get one formula for all these, one formula based on radius of gyration. So each one is having different radius of gyration, right? For example, how much is the radius of gyration of ring? बताना जरा. K का वैल्यू कितना होता है? R, isn't it? We just have to compare the moment of inertia with mk square. कल बताया था मैंने. डिस्क के लिए बताओ क्या होता है मोमेंट, radius of gyration. If you remember, it is R by √2, है ना. क्या किया था उसके लिए हमने? mr square by 2 is the moment of inertia equated to mk square. इतना आ गया था. सिमिलरली अगर सॉलिड स्फीयर के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से एक बार. सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr स्क्वायर, है ना. 2/5, ये 8 जैसा दिख रहा है. लेट मी जस्ट रिमूव इट वंस. हाँ, तो 2/5 mr स्क्वायर, और इसको इक्वेट कर लेंगे mk स्क्वायर से. मास मास कैंसिल, k विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखो, √2/5 इंटू r. ये हो जाएगा रेडियस ऑफ gyration फॉर सॉलिड स्फीयर. हॉलो का भी निकाल सकते हो, √2/3 इट विल बी, राइट. वी नो हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ gyration. So let's bring the equation in terms of k, which is radius of gyration. Whenever required, whenever one shape is given, put the value of k in that equation, you'll be getting the acceleration. ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे. I'll be just showing you here. So let's say this is the situation, right? ये situation है, inclined plane पे कोई भी object रखा हुआ है. Is it a ring? Not necessary. It can be a disc, it can be a solid sphere, it can be hollow sphere, anything, circular objects, right?
तो whenever something is kept on an inclined plane, let's say this angle is theta, there will be a force acting in this direction. We know this from the ancient civilization, है ना, mg sin theta force लगता है, सभी को पता है ये. तो this is mg sin theta. What about this force guys? This is mg cos theta, जो कि नॉर्मल कहलाता है, because this is the normal. तो ये दोनों बैलेंस आउट हो जाते हैं, isn't it? Great. अब देखो, in the same direction it will have some acceleration of center of mass and also it will have some alpha, क्योंकि रोल करते हुए नीचे आ रहा है, and it will have some friction force in this direction. उसको मैंने क्या लिख लिया? F. ये डायग्राम क्लियर है क्या? देखो, mg sin theta, a alpha n mg cos theta. Also you can draw omega, right? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगा उसके पास कुछ. अब देखना ध्यान से, हाउ डू आई राइट द इक्वेशंस. ठीक है, देखो ये इक्वेशंस देखना सारे के सारे. व्हाट डिड आई से? इन दिस डायरेक्शन देयर इज अ फोर्स mg sin थीटा, है ना. सो लेट मी राइट डाउन हियर, 1 सेकेंड. यस, हाँ, तो यहां पे क्या फोर्स था? देखो, mg sin थीटा. और इधर कौन सा फोर्स था? F. वी नो द इक्वेशन, राइट, फॉर रोलिंग. F net इज इक्वल टू ma और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. वही लगाना है, कुछ भी नया नहीं है, राइट. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव टू डू द सेम थिंग ओनली. अब देखो, इन along the inclined direction, when the angle is theta, along the inclined direction, what are the forces acting? mg sin theta, F, and then there is one acceleration in this direction. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? देखो, लेट्स टेक दिस एज पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड्स वाला पॉजिटिव. तो mg sin थीटा पॉजिटिव, माइनस एफ, बिकॉज एफ इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू ma. समझ में आ गया? देखो सिंपल है ना, एफ नेट इक्वल टू ma. mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू ma. ये हो गया एक इक्वेशन. चलो इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1. कमिंग टू द सेकंड वन नाउ, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. यही तो है. टॉर्क किसके अबाउट लिखते हैं हम? सेंटर ऑफ मास. अबाउट सेंटर ऑफ मास इफ यू सी, द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स इज 0. mg sin थीटा तो यहीं से पास हो रहा है ना. देखो, दिस इज सेंटर ऑफ मास, यहां से पास हो रहा है, टॉर्क 0. ओनली टॉर्क इज ड्यू टू दिस F. सिर्फ F का टॉर्क है. F का टॉर्क कितना है? F इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो R. तो F इंटू आर, और ये क्लॉकवाइज है. देखो, अबाउट सेंटर ऑफ मास इट इज क्लॉकवाइज, ऐसे. लेट्स टेक दैट एज पॉजिटिव. तो F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, है ना, आई अल्फा. नाउ बिकॉज आई एम जनरलाइजिंग दिस केस, in generalized form I can be written as mk square. If you want it for ring, put the value of k. k कितना होता है रिंग का? r, तो mr स्क्वायर बन जाएगा. If you want a disk, r, k कितना होता है डिस्क के लिए? r by root 2. रखो r by root 2, mr square by 2 it will become, right? So generalized हो गया यहाँ पे केस. Getting? So f into r is equal to mk square into alpha. ठीक है. And also I know in case of pure rolling ये कंडीशन भी होता है. Alpha is equal to a by r, or else A is equal to alpha r. पता है ना मुझे ये? Great. When you solve these two equations, ये वाला equation, 3 equations कह लो, this is second and this is the third one. If you solve these 3 equations, you will be getting the acceleration. देखो ध्यान से, g sin theta upon 1 plus k square upon r square. I know most of you already know this equation, but even if you don't know, आज से जान लो और आज से याद कर लो इसको ढंग से, okay? Because they ask very I mean frequently पूछते हैं वो क्वेश्चन इससे. ठीक है. तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. अगर ये स्लाइड करता तो क्या हो जाता एक्सेलरेशन? जस्ट g sin थीटा. सिर्फ क्या बन जाता वो? g sin थीटा. अब देखो ध्यान से, दिस इज फॉर रोलिंग, राइट. 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. इन आवर प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट इट इज अ रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. अब मैं ये फॉर्मूला किसी के लिए यूज कर सकता हूं, राइट. अब ये क्या है? ब्रह्मास्त्र है मेरे लिए. इन एनी रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम आई कैन जस्ट यूज दिस इक्वेशन. किसी का भी एक्सेलरेशन बता दूंगा मैं, इजंट इट? अब देखना, इन दिस इक्वेशन फॉर आवर प्रॉब्लम उसने क्या बोला? रिंग है. रिंग के लिए k इज इक्वल टू r, दैट आई नो. ही ऑल्सो सेड दैट दिस एंगल इज 30. क्वेश्चन में देखना आप, ही सेड एंगल इज 30. तो 30 डिग्री रख लेंगे थीटा की जगह, k की जगह क्या रख देंगे? r. तो क्या बन जाएगा? देखो, g sin 30, g इंटू 1 by 2, g by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस k इज इक्वल टू r, है ना. तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 1, ये 1 और ये 1 2, यानी कि g by 2 डिवाइडेड बाई 2, g by 4 विल बी द आंसर. समझ में आ रहा है क्या? g by 4 विल बी द आंसर. इवन इफ यू डोंट वांट टू वरी, डोंट वरी अबाउट दिस डेरिवेशन. आप ये याद करके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में. इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, आप ये याद रख लो, दैट विल बी डन. ओके, ग्रेट.
तो आप एक बार देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जस्ट लेट्स सी दैट। ठीक है, सो इन आवर प्रॉब्लम ही सेड हाँ 30 डिग्री और वो सब दिया हुआ था, कौन सा ऑप्शन है, G/4 सी आ गया आंसर। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड ऑन दिस ओनली लेट्स डू वन प्रॉब्लम जस्ट टू गिव यू सम कॉन्फिडेंस, जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आई हैव टेकन दिस लास्ट प्रॉब्लम। बताओ, he is saying disk and sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes। तो inclined plane पे एक डिस्क है एंड दूसरे inclined plane पे एक स्फीयर है। एवरीथिंग इज सेम, एंगल सब सेम है, सब कुछ सेम है, राइट? मासेस अलग अलग है दोनों के, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट? कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे पहले आ जाएगा? अगर ये डिस्क है एंड दिस इज वन हॉलो स्फीयर, दे आर रिलीज फ्रॉम सेम हाइट, जीरो वेलोसिटी, कौन पहले पहुंचेगा? अब देखो इसमें क्या लॉजिक है। वी नो द एक्सेलरेशन का इक्वेशन नाउ, पता है ना एक्सेलरेशन का इक्वेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन का इक्वेशन? लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, इट इज g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। कैन वी सी दैट? if k is more, तो दिस डिनोमिनेटर विल बी मोर, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस। मतलब अगर यहां पे मैं लिखता हूं, देखो, अगर k इज मोर तो एक्सेलरेशन विल बी लेस, है ना? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो ध्यान से लिखना। k किससे रिलेटेड है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, राइट? k मोर का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, इन अ वे वी कैन से इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर। ज्यादा इनर्शिया है तो एक्सेलरेशन कम होगा, राइट? इट डज नॉट वांट टू मूव। मोर इनर्शिया का मतलब क्या है? उसको मूव करना पसंद नहीं है, लेजी है, बहुत आराम से बैठना पसंद है ना? ज्यादा इनर्शिया है, तो अगर ज्यादा इनर्शिया है देन एक्सेलरेशन विल बी लेस ऑब्वियसली, व्हिच वी कैन प्रूव फ्रॉम हियर आल्सो। ज्यादा इनर्शिया मतलब k मोर मतलब एक्सेलरेशन लेस। अगर एक्सेलरेशन इज लेस देन टाइम टेकन विल बी मोर, टाइम टेकन विल बी मोर, है ना? ये समझ में आया क्या? टाइम टेकन के लिए यू कैन जस्ट यूज द इक्वेशन ऑल्सो। मान लो ये लेंथ l नीचे आता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखते ही काइनेमेटिक इक्वेशन वी कैन अप्लाई, सो वी कैन जस्ट यूज दिस वन, राइट? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और else we can just use this one also, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, है ना? तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा टाइम कम लगेगा, ये तो समझ में आता है ना हमें? अब देखो ना उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट? नीचे कौन पहले आ जाएगा? जिसका इनर्शिया कम होगा या फिर जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? हॉलो स्फीयर और डिस्क? हॉलो स्फीयर, बिकॉज इसका k वैल्यू इज कम। देखो ध्यान से, k फॉर हॉलो स्फीयर वी हैव सीन √2/5 into r। इसको जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी समथिंग अराउंड 0.632 r, बट डिस्क में ये होता है r डिवाइडेड बाय √2, इट विल बी अराउंड 0.707 into r। तो k वैल्यू इज लेस फॉर हॉलो स्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर, है ना? ये ज्यादा है, k वैल्यू इज लेस। K value is less means acceleration is more, so time taken will be less। तो पहले कौन आ जाएगा? Sphere। Sphere will get to the bottom of the plane first। ठीक है? अब देखो काफी लॉजिकल है, but you can just do it in a seconds, right? If you know the logic। जिसका inertia ज्यादा that will take more time, जिसका inertia कम that will take less time। That also you can do, or else you have the equation। ठीक है? So guys, this lecture was very conceptual. If you are facing any difficulty in any question, read slide theory and again watch this lecture, again try to solve the problem, okay? Or else you take the screenshot और उसको try करो solve करने का, okay? चलो great, तो great. I hope you understood a lot in this lecture. Rotational motion काफी हद तक clear हुआ होगा, but again if you are facing any difficulty फिर से देख लेना वो video, ठीक है? You can just jump to that question and try it again. Guys, it was a great interaction with you. I'm ending the session here. If you liked the video, hit the like button in YouTube, subscribe to the channel. Okay guys, मिलते हैं फिर. Okay, bye bye. Signing off.